تو آج سے 750-800 سال پہلے حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ جو ہے نا 1400 بزرگوں کے ساتھ دکن میں تشریف لائے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ جو ہے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، 16 واسطوں سے جو ہے حضرت حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات، یہ آستانہ 760 سالہ قدیم آستانہ ہے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ دکن میں سب سے پہلے تشریف لانے والے بزرگوں میں سے۔ آپ سامرا یعنی عراق سے دہلی ہوتے ہوئے دکن تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کل 1400 اولیاء کرام، جن میں کچھ پالکی نشین تھے، آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کے آستانے کو وادی گنج شہیدہ و کربلا ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی کے ذات بابرکت سے دکن میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ آپ کا آستانہ 68 ایکڑ احاطے میں موجود ہے، جس میں آپ کے خلفاء، شہداء کرام، اولیاء کاملین، علماء صالحین کے مزارات بھی موجود ہیں۔ آپ کا مزار مبارک اس احاطے میں سب سے اول ایک وسیع چبوترے پر واقع ہے۔ آپ کی مزار مبارک کے پائیں آپ کے زوجہ محترمہ حضرت گوہر بی بی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے۔ آپ کے چبوترے کے سیڑھیوں سے متصل آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت سید ترکش بی بی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت گوہر بی بی کے مزار کی جانب جنوب آپ کی بہو اور زوجہ حضرت منور بادشاہ سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور آپ کے چبوترے کے جنوب خانواں صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے
لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ خوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو ذات ہوئی انتخاب وصف والا جواب، ذات ہوئی انتخاب وصف والا جواب، نام ہوا مصطفیٰ تم سے اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ خوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے بہت بہت مبارکباد آپ کو، کیا لوگوں کے
पैगाम को, उनके अहवाल को लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी टीवी को। अली वॉइस चैनल, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हजरत की जो है तारीख आप जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे जी। तो ज़िम्मन में अर्ज़ ये करता हूँ कि हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह ये दक्कन में सबसे पहले आने वाले बुजुर्ग हैं। दक्कन में दक्कन जो ये इलाका था, साउथ इंडिया के इलाके को दक्कन बोलते थे जी। देवगिरी से लेके आप बेंगलुरु वगैरह इधर साइड मैसूर वगैरह जो भी साउथ इंडिया तक का है ना, जिसको पहले ज़माने में यानी मेडिवल इंडिया में उसको दक्कन बोलते थे, दक्कन। तो आज से 750-800 साल पहले हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग के लिए आप जो है ना 1400 बुज़ुर्गों के साथ दक्कन में तशरीफ़ लाए और आपके पीर मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर आप जो है यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका सिलसिला नसब जो है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, 16 वास्तों से जो है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका सिलसिला नसब मिलता है। और आपका सिलसिला नसब मादरी यानी माँ की जानिब से आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता हुआ मौलाए कायनात तक पहुँचता है। तो आप नसबन जो है फ़ारूकी हैं और सिलसिला चिश्तिया में आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के अकबर खुलफाओं में से हैं जी। अच्छा। और आपके साथ 1400 औलिया इकराम की जमात यहाँ पर जो है इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ लाई। और सगर में जो है ना इस्लाम की तबलीग के लिए जब आप आए तो कुछ यहाँ के लोकल लोगों से मुखालिफत हुई, कुछ जालिम हुक्मरानों से मुखालिफत हुई, तो उसमें एक मार्का पेश आया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे फ़ैल में सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह को उसमें फ़तह नसीब फरमाया। तो उसके बाद जो है ना इस्लाम का जो है आगाज़ दक्कन में जो है ना सगर की सरज़मीन से हो। उसके बाद यहाँ से आपके मुरीदीन, आपके खुलफा मुख्तसर काफ़िलों की शक्ल में यानी 7, 12, 5, 40 ऐसा काफ़िलों की शक्ल में दक्कन के मुख्तलिफ़ मुकामात पर तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले गए। जिसमें मशहूर खुलफा आपके तालीकोट में आपके खुलफा हैं, तालीकोट में हुबली के पास आपके खुलफा जो है इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए। रायचूर में आपके खुलफा तशरीफ़ ले गए जी। आलमपुर, करनूल वगैरह की तरफ जो है हज़रत के खुलफा तशरीफ़ ले गए इस्लाम की दावत के लिए। गुलबर्गा तशरीफ़ ले गए, बीजापुर तशरीफ़ ले गए। तो यहाँ से जो है ना इस्लाम के मुख्तलिफ़ दक्कन के मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत के खुलफा जो है ना तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ से जो है ना इस्लाम का आगाज़ हुआ। उसके 100-150 साल के बाद चिश्तिया सिलसिले के अकाबिर सूफिया इकराम हज़रत बंदा नवाज़ गिरसुदराज रहमतुल्लाह अलैह हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी हैं और हज़रत लाडले मशाइख अंसारी हैं, हज़रत बुरहानुद्दीन औलिया गरीब रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये जो है दक्कन की तरफ तशरीफ़ लाए। उसके बाद ये जो मिशन को जो है आगे बढ़ाए और तालीम और तसनीफ़ के काम भी जो है ना ये सूफिया इकराम अंजाम दिए। और बोलने का मकसद ये है कि इब्तिदा में जो सूफिया इकराम दक्कन में तशरीफ़ लाए वो हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह हाँ सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले। और उसके बाद जो है ना इनके साथ जो बुजुर्गान दीन थे वो जो है ना इस्लाम की जो है ना बुनियादें डालने वालों में से थे। इस्लाम की बुनियादों का काम जो करे वो ये सूफिया इकराम थे। उसके ऊपर इमारत की जब तामीर का काम हुआ तो ये बंदा नवाज़ गिरसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्गान दीन वो मिशन को आगे बढ़ाए और दक्कन में जो है ना चारों तरफ जो है ना इस्लाम की सदाएँ बुलंद हुई। और आपका जो आस्थाना है ये 70 एकड़ ज़मीन पर, 70 एकड़, तो इसको करबला सानी कहा जाता है जी। करबला सानी कहने का मकसद इसकी वजह यह है कि एक जो मारका हुआ यहाँ पर जी हक़ और बातिल के दरमियान जी, उसमें कई औलिया इकराम शहीद हुए। मतलब जंगें हुई हैं यहाँ? हाँ, जंग हुई, जंग की सूरत हुई और वो जंग ऐसी थी कि डिफेंसिव जंग थी वो जी। अच्छा, यानी इस्लाम की तालीमात कैसी है? इस्लाम ये सिखाता है कि किसी पर जो है ना आप पहले चढ़ाई नहीं कर सकते, पहले उसको दावत देते। जब आप पर जबर और सितम का मामला जी होता है तो आपकी डिफेंस में जो है ना बचाव के लिए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मामला हुआ।
तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो जो है ना मारिका सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह में फतेह नसीब हुई जी और यहाँ पर जो उस ज़माने में औलिया इकराम शहीद हुए तो उनके मज़ारात ये जो है ना इहाते में मौजूद हैं और उसके बाद भी जो है ना बुजुर्गान दीन जो है ना जब दखन में तशरीफ़ लाते तो कई औलिया इकराम का आरज़ू रहती कि ये जद्दे शहीदा की वादी में वो मदफून हो, तो उसके बाद भी कई बुजुर्गान दीन आए और यहाँ पर मदफून हुए हज़रत शेर साया। तो इसीलिए जो है ना इसको एक मुकाम जो है करबला सानी ये अब का बोला हुआ नाम नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जी तो ये मुकाम करबला सानी कहा जाता है। और मज़ीद मामला ये है कि हज़रत सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को हज़रत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह भी जो है ना हाजिर किए हैं और हज़रत जो है ना अपने साथ जो है 7 पहली फूल लेकर आए जी और आकर जो आपका मामला ये था कि सब मज़ारात पर एक एक फूल वो पेश करते एक दो तो आखिरी एक मज़ार पर हज़रत जब ज़ियारत तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर फूल कम पड़े तो कंकर आप चढ़ाकर फातिहा पढ़े तो आज तक भी जो है ना वो बाज़ार मुबारक को हज़रत कंकर पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं और लोग जाते हैं अपनी मुरादें पाते हैं जी जो है ना वहाँ से कुछ कंकर उठाकर जो है ना मुरादें मांगते हैं। जब मुरादें तकमील को पहुँचती हैं तो अल्लाह का जो है ना मिस्री और जो है ना हस्ब इस्तिताअत फातिहा गुजारते हैं और अपनी जो है ना मन्नत पूरी करते हैं। तो हज़रत का जो है ना इसमें मुबारक था हज़रत अब्दुल्ला जी मगर बंदा नवाज के कंकर चढ़ाने की वजह से आप कंकर पीर मशहूर हुए। तो ये मुख्तसर वाक़यात हज़रत के ताल्लुक़ से हैं। और वो कुएं में जो होता है इसमें लिखे हुआ है वो जी फारसी ज़ुबान में कुछ तहरीर किए हुए जी। हैं हज़रत, तो उसके बारे में कुछ मुख्तसर वो बौली जो है हज़रत सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही है वो जी एक कुआं था वो। उसके बाद जो है ना फिरोज शाह बहमनियों के दौर में वो जो है ना एक बौली की शक्ल जो है ना जी उसको दिया गया। उसकी तामीर के ताल्लुक़ से कतबा है वो जी अच्छा बौली का जो तामीर हुआ जी उसके ताल्लुक़ से वो कतबा है, फ़ारसी में है। वो बहमनियों के दौर में वो बौली तामीर हुई और उसकी खुसूसियत यह है कि वो बौली में एक रास्ता है, जी वो रास्ता जो है ना साहिब हज़रत की मज़ार मुबारक तक है। अच्छा और कहा यह जाता है और जो है ना ये बात मुस्तनद अलैह है जी। कि हज़रत सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह जो है ना की मज़ार मुबारक तहखाने में है और वहाँ से वो रास्ता बौली तक का है और हज़रत जो है ना वज़ू को वहाँ से तशरीफ़ ले आते थे और वह वज़ू करते थे बौली में। इसीलिए वो बॉडी को शफ़ा के तौर पर भी उसका पानी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हज़रत सूफी सरमद रहमतुल्लाह अलैह उसमें वज़ू करते थे। तो इस निस्बत से वो बॉडी का जो पानी है वो बहुत ही जो है ना मुतबर्रक माना जाता है। और उसके अंदर एक शेर भी है, वो जो कतबा लिखा हुआ है उसके अंदर जो उसकी तारीख़ के सिलसिले में कि वो जो बनाने वाला था तो वो ये पानी कैफियत को देखकर जो है ना ये पानी को आबे कौसर के पानी से जो है ना कंपेयर करा, तो उसके ताल्लुक़ से भी वो एक शेर है वो कतबे में। तो इसीलिए जो है ना कई